Assalamu alaikum. Pachim Maharashtra Education Trust's Lady Halima Begum Urdu Semi-English Primary School. I am Parveen Sheikh, Standard 5th Semi-English, teaching science lesson. Yesterday we have learned the environmental balance. What is environment and how the environmental balance is maintained. Now we are going to learn lesson number 12, Food for All, page number 58. Food. What do you mean by food? Food means ग़िज़ा. For all, सबके लिए. ग़िज़ा सबके लिए बहुत ज़रूरी है. For living things, the food is very necessary. In this lesson, we are going to learn the agriculture. What is meant by agriculture? What is the meaning of agriculture? Agriculture means खेती-बाड़ी, ज़राअत. How it is maintained? The agricultural seasons are there. And there's food. Food is very necessary for all. And from where the food is from where we get the food? Food is getting from plants. The farmers, they sow the seeds and they cultivate and they crops आते हैं और इस तरीके से हमको plants मिलते हैं और plants के ज़रिए से हमको grains मिलते हैं. And farmers also cultivate or they grow the trees in orchards and we get fruits from there. Orchards means बाग. बाग में वो दरख्त लगाते हैं और दरख्त से हमको fruits हासिल होते हैं. Over 60%, above 60% land is for the whole land of India. हमारे इंडिया के 60% से ऊपर जो land है वो agriculture के लिए इस्तेमाल होता है. For agriculture, the land is. There are two main seasons. अब seasons यानी क्या? Seasons यानी हंगाम. ज़राअत के हंगाम. There are two main seasons. What are there? The June से लेकर October तक. From June to October, the Kharif season. In this Kharif season, we know that जून के महीने में बारिश आती है और बारिश का पानी जो है वो इस फसल के लिए इस्तेमाल होता है. There is no need to supply the water because natural water is going to use for this Kharif season. And the next one is October to March. October से लेके मार्च तक रबी सीजन. और रबी सीजन में क्या होता है कि रबी सीजन में यहाँ पर इस महीने में बारिश नहीं होती है. तो from where the field get water, this is the stored water in this soil. जो पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब शुदा होता है और from the dams and rivers. ये पानी यहाँ से इस्तेमाल होता है for रबी season. And from March to June, this is the summer season. There are mainly two seasons, Rabi and Kharif, and another one is summer season. The agricultural work, next point is agricultural work. The farmers, what they want, what they wish, they want good harvest. अच्छी फसल आना उन लोगों को चाहिए. अगर उनकी फसल अच्छी होती है, गुड हार्वेस्ट होता है, अच्छी फसल उगती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको कीमत मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा हासिल कर सकेंगे. इसलिए farmers want good harvest. For this good harvest, what they need? Good fertility, land, good seeds and good fertilizers. अगर उनके पास बहुत अच्छी ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, उनके पास बीज अच्छी किस्म के है, अगर उनके पास fertilizers है, then they get more and more yield, higher yield. ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल उनको मिलेगी और उसके लिए उनको सीड्स अच्छे चाहिए, fertilizers अच्छे चाहिए. हो गया. उसके बाद water is very necessary, है ना. फसल के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है. तो पानी कहाँ से हासिल होगा? तो रिवर्स और डैम बनाए जाते हैं, बंद बनाए जाते हैं और वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है. The essential water is good for the field and the protection of food. अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बेस्ट जो पेस्टिसाइड्स है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसके अलावा फार्मर्स जो है वो क्या करेंगे कि उसको महफूज करने के तरीके, हिफाजत से रखना,
उसको जगह अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने इस क्रॉप्स को, अपने इस जो ग्रेन्स है उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ मोर पॉपुलेशन इन इंडिया देन ऑल्सो the grains are enough and essential, or this grains are enough for the Indian population। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छी फसलें उगाई जाती है और पूरी लोगों को तकसीम की जाती है। किसी को भी यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ ग्रेन्स नहीं है, किसी को भी फूड की कमी नहीं है, सबको बराबर से फूड मिलता है। देन पॉपुलेशन हो गया। मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या है? ट्रेडिशनल का मतलब है रिवायती। ट्रेडिशन यानी रिवायती, यानी जो पुराने तरीके हैं, पुराने तरीक़ों से एग्रीकल्चर किया जाता था, पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करके। अब पुराने तरीका क्या है? तो जैसे बैल है, बैलों की जोड़ी से पूरे प्लॉ किया जाता था, पूरी फील्ड को प्लॉ किया जाता था और पूरी फील्ड को जो है जोता जाता था। उसके बाद उसके अंदर बीज डाले जाते थे और मूट से जो है पानी जो है वो कैनाल्स के ज़रिए मूट से पानी सप्लाई किया जाए। दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। ऑक्सन्स आर यूज फॉर दिस मेथड एंड द मोट के ज़रिए से पानी जो है सप्लाई किया जाए। यूज़ हार्वेस्टिंग। अब उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए ये मेथड्स जो है पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल होता था। तो उसके अलावा जो है घर के जो अफराद है, घर के मेंबर्स जो है वो खेती बाड़ी का काम करते थे। द फार्मर्स एंड हिज फैमिली, दे ऑल टुगेदर दे वर्क्स इन द फील्ड एंड फैमिली। नाउ डेज द मॉडर्न मेथड्स आर यूज। अब जो है अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब मॉडर्न मेथड्स में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? मशीन्स। they are using machines for harvesting and for every work, whatever work is done in the field, every work is done by the machines. And the improved method of agriculture. What are the improved methods? The improved methods are, they are using the improved seed. अब पिछले रिवायती तरीक़ों में क्या होता था कि जो सीड्स होते थे वो सीड्स जो है जैसे फसल काटी जाती थी तो उस फसल के सीड्स को रखा जाता था 1 साल तक और उसी सीड्स को दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। तो उससे क्या होता था? यील्ड जो है वो डाउन हो जाती थी, यानी फसल कम आती थी और अच्छी किस्म की फसल नहीं आती थी। तो इम्प्रूव सीड्स जो आर यूज, द अर्लियर सीड्स ऑफ वन सीजन वो इस्तेमाल करते थे पिछले सीड्स जो है इस्तेमाल करके उसका, लेकिन उससे क्या होता था? यील्ड जो है उसके फसलों की जो पैदावार जो है वो कम होती जाती थी। नाउ रिसर्च में क्या किया गया कि ये जो सीड्स है इसको इम्प्रूव सीड्स बनाए गए, नई किस्म के, जदीद किस्म के, आला किस्म के जो है रिसर्च के ज़रिए से नए सीड्स का रिसर्च किया गया और इससे क्या हो जाएगा? उससे पेस्ट अटैक भी जो है वो कम होता था, यानी कीड़ों का जो उसके ऊपर कीड़े मकोड़ों से जो फसलें बर्बाद होती थी उसका भी रेंज जो है वो कम हो गया और हाई यील्ड आने लगे। अच्छी किस्म के बीज इस्तेमाल करने से फसलें भी बहुत बेहतरीन किस्म की फसलें आने लगी। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? द मीनिंग ऑफ इरिगेशन इज़ आबपाशी। आब यानी पानी, पाशी यानी पहुँचाना। अब पानी कैसे पहुँचाते थे? पुराना मेथड क्या था पानी पहुँचाने का तरीका? तो नदी, कुएं, तालाब जो हैं उनसे कैनाल्स बनाए जाते थे, रास्ते बनाए जाते थे और उन मोट के ज़रिए से उन जो कैनाल्स के अंदर पानी बहाया जाता था जो कि खेतों में जाता था और खेतों में जाने से वो खेत उगते थे। पर इसमें क्या होता है कि जब पानी इस कैनाल के ज़रिए से आता है, कैनाल से जब पानी बहता है तो उसमें इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता था, पानी ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा जज्ब हो जाता था, उससे नुकसान होता था, यानी पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता था। तो ये जो मेथड है, जिस मेथड के ज़रिए ये जो आबपाशी इरिगेशन किया जाता था, ये जो मेथड है, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन देयर आर 2 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। 2 नए तरीके, जो जदीद तरीके जो है इरिगेशन के, वो हम देखेंगे। द वन इज़ द ड्रिप इरिगेशन and another sprinkle irrigation. What is mean by drip irrigation?
कतरा कतरा आबपाशी, उर्दू में कहेंगे उसे कतरा कतरा आबपाशी। जैसे कि अब नया मेथड जो यूज़ हो गया है उसमें क्या किया जाता है कि पाइप जो रहते हैं, पाइप के अंदर सुराख होते हैं, देयर आर होल्स इन दैट पाइप, फ्रॉम दैट होल्स द वाटर ड्रिप्स। तो essential water, what is necessary, how much water is necessary for the field, that much water is used from that pipes. इससे क्या होता है, तो सुराख में से जितना पानी ज़रूरी है उतना ही पानी फील्ड को मिलता था, और उसकी वजह से क्या हो जाता था, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है। दूसरा जो तरीका है स्प्रिंकल इरिगेशन, इसका फव्वारे के ज़रिए से आबपाशी। इससे क्या होता है कि पूरे फील्ड को जो है बाय मीन्स ऑफ स्प्रिंकलर यानी फव्वारे के ज़रिए पूरी फील्ड को जो है पानी पहुंचाया जाता है। इससे भी क्या होता है कि हाउ मच वाटर इज़ एसेंशियल, दैट मच ओनली यूज फॉर द फील्ड एंड नो वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ देयर। उसकी वजह से भी पानी का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है या पानी ज़्यादा ज़ाय नहीं होता है। एंड नाउ अनदर पॉइंट, फर्टिलाइजर्स। इफ़ यू वांट द मोर yield, higher yield, then we have to use the pesticides, fertilizers. अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको फसल अच्छी मिलती है। व्हाट आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। व्हाट आर दैट? द नेचुरल फर्टिलाइज़र एंड द केमिकल फर्टिलाइज़र। नेचुरल फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि जो पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं, व्हाट आर द प्लांट्स एंड द मैन्यूअर्स, जो एनिमल डंग्स होते हैं, उससे क्या हो जाता है, खाद बनती है, जिसे नेचुरल फर्टिलाइज़र कहते हैं, कुदरती खाद, जो कि जानवरों के फजले से और प्लांट्स और वेजिटेबल्स जो हम लोगों के घर में सड़ जाते हैं, उससे क्या है जो हासिल होता है फर्टिलाइज़र, वो नेचुरल तरीके से होता है, कुदरती तौर पर होता है। और ये फर्टिलाइज़र्स जो है फील्ड्स में अगर खेतों में इस्तेमाल किए जाए तो अच्छी से अच्छी फसल हमको हासिल होती है। द अनदर टाइप इज़ द केमिकल फर्टिलाइज़र। In that chemical fertilizer, 2-3 chemicals are used in that. 2-3 केमिकल्स उसमें मिलते हैं, और वो अगर फर्टिलाइज़र जो है अगर खेतों में इस्तेमाल किए जाए तो उससे क्या होगा, हायर यील्ड हासिल होती है, अच्छे से अच्छे खाद इस्तेमाल की जाती है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जाती है। बट ओवर यूसेज ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ओवर यूज़ किया जाए, तो उससे भी क्या होता है, नुकसान होता है। नाउ कम टू दिस, कम हियर, कैन यू सी द पिक्चर? हाँ, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। दिस इज द जो रिवायती एग्रीकल्चर, पुरानी एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है इस पिक्चर के अंदर। और यहाँ पर ये फार्मर जो है वो ही इज़ प्लॉइंग द फील्ड विद दिस 2 ऑक्सन्स। ये ऑक्सन्स जो है उसके ज़रिए से ये जो है फील्ड को जो है प्लॉ कर रहा है। ये पुराना तरीका है, इस पुराने तरीके से जो है खेतीबाड़ी की जाती है। नाउ द मॉडर्न मेथड्स आर यूज, और जिसमें कि मशीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मशीनों के ज़रिए से जो खेतीबाड़ी की जाती है, और उससे क्या होता है, खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती है और वक्त बचता है और हायर यील्ड, अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। कैन यू सी दिस पिक्चर? इन दिस पिक्चर द फार्मर्स एंड हिज family members, they are working in the field. Now it is not necessary to include the family members because the field is plowing, and every work in the field it's machines के ज़रिए जो है वो किए जा रहे हैं। Now so look at this picture, the grains and sack of the grains, they are taking it to the protection of this, उसको अच्छी तरीके से कहाँ पर संभाल कर हिफाजत से रखा जाता है। This is also very necessary, and look at this picture. In this picture, this tent is maintained. Here, the sacks of the grains are maintained here, protected here. Okay, this part of the lesson, half lesson is completed over here. I hope everybody clear it, and सबको ये जो lesson है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ, and the half portion of this lesson will be continued in the next video. Goodbye.